Hey learners, hope you all are doing good. English Tutor welcomes you once again with another lesson on nouns. ये nouns का थर्ड लेसन है. फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा कि जनरली nouns कितने काइंड्स के हैं. सेकंड में we did nouns based on gender. और आज हम तीसरा और फोर्थ टाइप ऑफ नाउन करेंगे. Third type is countable and non-countable noun and fourth is nouns based on numbers जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल कैटेगरी में बांटते हैं. नाउन्स की जो मेन डिवीजन है वो 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स जो हम पहले कर चुके हैं वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स का मतलब है कि नाउन्स को और भी तरीकों से डिवाइड किया गया है या और भी टाइप्स है क्लासिफाइड किया गया है नाउन्स को अलग अलग तरीके से, जिनमें आएगा काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन, नाउन्स बेस्ड ऑन जेंडर जो हमने पार्ट सेकंड में किया था, मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, कॉमन नाउन एंड न्यूटर नाउन. थर्ड है नाउन बेस्ड ऑन नंबर जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज नाउन्स केस जो नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या है उसके बेसिस पे नाउन को डिवाइड करता है. So today we'll do countable and non-countable nouns. The name itself indicate a lot about this noun. Countable जिसकी गिनती की जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, and non-countable जिसकी गिनती नहीं हो सकती. So countable noun is a noun with both singular and plural form. ये singular और plural दोनों forms में आएगा. And it names anything or anyone that one can count. जिसकी गिनती की जा सके ये उसका नाम हो सकता है. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आएंगे. कॉमन नाउन गर्ल, बॉय, मदर, फादर, ये सब कॉमन नाउन्स है. सिटी, टाउन. और प्रॉपर नाउन्स में किसी का भी नाम हो सकता है. इंडिया, दिल्ली, सिमरन, रोहित, रवि. सो ये सारे प्रॉपर नाउन्स में आएंगे और ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में फॉल होंगे. एग्जाम्पल्स अगर करनी हो, वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड चेयर्स ब्लू. टेबल्स को हमने रेड पेंट किया, टेबल वी कैन काउंट, चेयर्स को वी कैन काउंट. सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स. She found 10 silver coins in the rack of an old library. Library can be counted, silver coins can be counted. The oak tree lost 3 branches in the hurricane. Storm में oak tree की 3 branches जितनी गिरी या उसको हम काउंट कर सके. Other examples can be book, we can count, girl, student, son, players, etc. So next is uncountable noun. Uncountable which cannot be counted, जिसकी गिनती नहीं हो सकती. Abstract noun, material noun and collective noun falls in category of uncountable noun. ये uncountable nouns की कैटेगरी में आएंगे. So it's a noun which does not have a plural form. इसकी कोई plural form नहीं होती. It refers to something that one cannot easily count. इसको easily count नहीं किया जा सकता. It always take a singular verb in a sentence. Sentence में जब uncountable noun लगता है तो उसके बाद singular verb आएगा. They are similar to collective noun. ये collective noun के साथ मिलते जुलते होते हैं. And they are opposite of countable noun. ये countable noun के opposite होते हैं. Let's see few examples of uncountable noun. J. Priestley discovered oxygen. Oxygen cannot be made plural. Oxygen को हम oxygens नहीं कह सकते क्योंकि oxygen is a non-countable noun. It takes verb is rather than plural are. So we'll always see oxygen is required in so and so hospital. Other examples are they decided to sell the furniture. Furnitures नहीं होगा, furniture होगा. Furniture में चाहे chairs है, tables है, almiras है, sofas है, whatever. But we cannot make noun furniture plural. Other uncountable nouns are honesty, beauty, water, air, oil, gold. For example, air is present everywhere. Air is uncountable, so it's taking singular verb in a sentence. Next noun,
which is classified on basis of number, जो नंबर के आधार पे क्लासिफाइड हुआ है। ये दो तरह का है, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन एक वचन, प्लूरल नाउन बहुवचन। A noun is singular, noun singular है when it points to one person, thing or animal। जब ये एक पर्सन, चीज या किसी एक के तरफ इशारा करे तो उस नाउन को सिंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन आदमी एक, टेबल, फैन, काउ, स्विच, पेन, ये सब एक है, इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। और a noun is plural when it points out more than one person। जब एक से ज्यादा की तरफ इशारा करे तो वो नाउन प्लूरल होता है। So a noun is plural when it points to more than one person, thing or animal. For example, men, tables, fans, cows, switches, pens, etc. I have seen people often getting confused while converting singular into plurals. हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है ज्यादातर कि एस कहाँ लगाना है, IES कब लगाना है प्लूरल बनाते वक्त, VES कहाँ लगाना है। तो आज हम रूल्स पढ़ेंगे सारे जिनके तहत सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट रूल है एड एस इफ सिंगुलर नंबर एंड्स विद द कॉन्सोनेंट। अगर सिंगुलर नंबर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उसके आगे सिंपली एस लगाने से वो प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर बुक का बुक्स, बॉय बॉयज, बॉल बॉल्स, गेट गेट्स, शॉप शॉप्स, अंकल अंकल्स, वॉल वॉल्स। सेकेंड रूल इज व्हेन सिंगुलर इज एंडिंग विद एस। जब सिंगुलर एस, डबल एस, CH, SH, एक्स के साथ एंड कर रहा हो तो इट कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ES। इनके साथ ES ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स आर एस, एसेस, आर्क, आर्क्स, बस, बसेस, बेंच, बेंचेस, किस, किसेस, बस, बसेस, टैक्सेस, डिश, डिशेस, डिच, डिचेस, फिश, फिशेस, मैच, मैचेस, क्लास, क्लासेस, कोच, कोचेस, कैनवस, कैनवसेस। Third is when singular nouns are ending with consonant plus O। जब O से पहले कोई भी consonant है तो generally इनका प्लूरल बनता है ES लगा के। For example, buffalo, O से पहले L है, buffaloes, ES लगेगा। cargo, cargoes, echo, echoes, potato, potatoes, volcano, O से पहले N लगा है, ES लग जाएगा, volcanoes। Now, as you know that in English language there are lot of exceptions to every rule. So, इस rule की exceptions है auto is made plural by adding S only, autos, dynamo, dynamos, Eskimo, Eskimos, zero, zeros, zoo, zoos। Next is if a noun ends in double vowel. If a noun ends in double vowel, it can be made plural by simply adding S. Bamboo, bamboos, bee, bees, tree, trees, shampoo, shampoos, portfolio, portfolios। Fifth rule is noun ending in consonant, जो consonant से end हो रहा है plus Y लगा हुआ है उसके साथ, can be made plural by changing Y into I। Y को I बना के और उसके साथ end पे ES लगाने से उसको plural बनाया जा सकता है। For example, ally, Y को हटा दिया और उसकी बजाय I लगा दिया प्लस ES ऐड कर दिया। allies, army, armies, body, bodies, city, cities, cry, cries, copy, copies। Next rule is singular nouns ending in vowel Y becomes plural by adding S. Attorney, attorneys, boy, boys, day, days, essay, essays, journey, journeys। Next है जो नाउन F से एंड कर रहे हैं या FE से एंड कर रहे हैं, they can be made plural by changing F और FE into VES। F काट के VES लगा दो या FE काट के VES लगाने से they can be made plural। So calf,
can be changed into calves. Half, halves. Knife, knives. Wolf, wolves. Elf, elves. Wife, wives. Shelf, shelves. Life, lives. Exception to this rules are, now cliff can be made plural by adding simply s. Grief, grieves. Belief, beliefs. Proof, proofs. Dwarf, dwarfs. These are exceptions to this rule. So some singular nouns can be changed by their internal vowel. Internal vowel को ही change करके उनको plural बनाया जा सकता है. Man में से a is changed into e and it becomes plural men. Foot, feet. Tooth, teeth. Mouse, mice. Fisherman, fishermen. Next rule is plurals are also made by adding en or ren to the singular. जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, ब्रदर का ब्रेथरन. कंपाउंड नाउन बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू इट. कंपाउंड नाउन वो नाउन है जो 2-3 वर्ड्स मिलके बनाया गया है. फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स बन जाएगा, ब्रदर के साथ एस ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम ब्रदर्स इन लॉ. सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, देन मदर्स इन लॉ. क्लास फेलो का क्लास फेलोज और पीकॉक का पीकॉक्स. लेटर्स, फिगर्स और एब्रीवेशंस को प्लूरल बनाया जाता है अपोस्ट्रोफी एस डाल के. बीए, बीएस. एमए, एमए अपोस्ट्रोफी एस. एमपी, एमपी अपोस्ट्रोफी एस. Now plurals of Latin words are made by changing us into I, a into ae, um into a and ex into ics. इसको थॉरोली पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से देखोगे चीजें जरूर क्लियर हो जाएंगी. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज कैक्टस. कैक्टस यूएस को डिलीट करके आई लगाया गया है, कैक्टाई. न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई. सिलेबस, सिलेबी. फंगस, फंगी. इंडेक्स, इंडेसेस. वर्टेक्स, वर्टिसेस. करिकुलम, करिकुला. एल्गा, एल्गी. लावा, लावी. कुछ नाउन्स यूज्ड ही सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं, इनके प्लूरल नहीं होते. एडवाइस, हेयर. न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स. फ्रूट, इनिंग, मशीनरी. कुछ नाउन सिंगुलर नाउन में ही यूज होते हैं तो कुछ सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, उनके सिंगुलर होते ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल कैटल, आर्म्स, पायजामास, spectacles, measles, poultry, shorts, people, billiards, tongs, scissors, trousers, shorts, riches. So some nouns are used in singular and plural forms both. ये singular और plural form दोनों में ही इसी तरह यूज किए जाते हैं. as such words यूज किए जाते हैं, कोई चेंज नहीं आता. For example cannon, dozen, score, fish, deer, sheep. इसके साथ ही I would like to tell you that there are few nouns those when becomes plural or are changed into plural changes their meaning also. कुछ नाउन ऐसे हैं जो जब प्लूरल बनते हैं तो साथ में उनका मतलब भी बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल एयर. एयर हवा होती है, लेकिन एयर्स को कहते हैं शेखी मारना या घमंड करना. गुड, भलाई, अच्छा. और गुड्स को कहते हैं सामान. आयरन, लोहा. और आयरन्स क्या है? बेड़ियां. वुड, लक्कड़. और वुड्स क्या है? जंगल. सो हमने देखा कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स के को जब प्लूरल में बनाया जाता है तो उनका मतलब भी बदल जाता है. होप यू एंजॉयड लर्निंग नाउन्स टुडे. Do like, share and subscribe the channel English Tutor.